Uh, So now, dear students, today we are going to discuss about array in PHP. Array in PHP. So if you talk about the array in PHP, as you know, I think you are very familiar with the term array. You must heard or must create the program in C, Java, or some any other language also. So similarly in PHP, you can create the array. Some syntaxes differ, some concept is differ with other language. So we are going to see what is the array in PHP, how you can create the array in PHP, how you can perform the operation onto the array in PHP. But before all this, you have to know what are the type of array in PHP. So first of all, I'm going to give you the type, then we are going to uh, take the topic one by one. As I'm assuming that you know what is the array, fine. So although I'm going to explain it uh, later in this lecture, so first of all, the first array that is found in the PHP, it is called indexed array. Second is associative array. Second is associative array, and third is multi-dimensional array. So the three array that you can find in your PHP. Fine. So first of all, I would like to explain what is the indexed array. Indexed array. Guys, the term that you are very much aware regarding the array, it is basically the indexed array. Means जो भी आपने array पढ़ा है पहले, जिस एरे के बारे में आपने सुना है पहले, जिस एरे को आपने समझा है पहले, वो एक्चुअली है क्या? दैट इज इंडेक्स्ड एरे. सी, सपोज सपोज इफ यू हैवंट एनी एरे, अगर आपके पास एरे नहीं है एंड यू नीड टू स्टोर और टू वर्क ऑन सम वेरिएबल, लाइक सपोज आपके प्रोग्राम में यू नीड टू स्टोर 10 वैल्यूज, 10 न्यूमेरिक वैल्यूज. तो आप क्या करते हो? You can declare the variable like a1, like a2, like a3. ये तब है जब आपके पास एरे नहीं है. इससे आपके एरे की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा आपको. a5 up to a10. When you are going to create the variable like this, see what will happen in the memory. Suppose ये आपकी मेमोरी है. जब आप एरे का डिक्लेरेशन इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, तो सी व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द मेमोरी, हाउ मेमोरी एलोकेशन इज गोइंग टू बी. So here, if I'm talking about the memory allocation, memory allocation for this arrangement, इस अरेंजमेंट का मेमोरी एलोकेशन कैसे हो सकता है? देखो, हो सकता है memory of for A1 is going to provided here, memory of A2 is going to provide here, this is memory for A3, this is for A4, this is for A5, this is for A6, this is for A7, and this is for A8, A9, A10. Fine. इसमें प्रॉब्लम क्या है? It is a very equivalent case. Suppose if you have a 10 friends, fine, and your teacher convey a message, give a message to you, dear, convey my message to your friends that they have to gather in the class within 5 minutes, and you have a mobile phone. आपके टीचर ने आपको मैसेज दिया कि आप अपने दोस्तों को बोल दो कि 5 मिनट में वो क्लास के अंदर मिले, और आपके फ्रेंड्स हैं कहाँ पे?
आपके फ्रेंड्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं अलग अलग लोकेशंस पे, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे है. So that might be a very difficult task. That might be a very difficult task to convey the message to your friends. ठीक है, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सारे अलग अलग हैं, उन्हें इकट्ठा करना और फिर उन्हें मैसेज कन्वे करना, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. सो सेम हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू allocate और डिक्लेयर द वेरिएबल लाइक दिस. सो मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा? इस तरीके से होगा. अब क्वेश्चन है कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, रहने दीजिए अलग अलग मेमोरी. देखो, बेसिकली व्हाट विल हैपन when we required multiple array, when we require multiple values. ठीक, उस केस में हमें मल्टीपल वैल्यू क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट टू मैनेज द डेटा. यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू लिखा है ना आपने, क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग को डेटा को मैनेज करना है, इसलिए हमें ज्यादा डेटा चाहिए. हम लोग उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं और वी वांट टू मैनेज द डेटा. And your data is not going to be managed easily if your data is distributed. अगर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से सेग्रीगेटेड है अलग अलग लोकेशंस पे, तो मैनेज करने में मुश्किल आएगी. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि यू कैन नॉट कन्वे द मैसेज ऑन द सेम टाइम टू योर ऑल द कलीग्स. उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, या इन्हें बुलाने में, या इन्हें इकट्ठा करने में, ठीक है, या इनके साथ जाने में. वट एवर यू आर वॉन्ट टू डू, आप डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो आप सारा काम एक साथ नहीं कर सकते. ठीक, एक ऑर्डर मैनेज नहीं कर सकते कि पहले मैं इसे बुलाता हूं, फिर मैं इसे बुलाता हूं, फिर मैं इसे बुलाता हूं. नहीं, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन बाय द मैनेज. आप सीरियल से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है. मीन्स यू कैन नॉट मैनेज द डेटा प्रॉपरली. Whereas, तो यहाँ पे जब रिसर्च हुई, then they have find कि okay, you can do one thing. How many location you need? Suppose you need 10 numeric value. You need to store 10 numeric value. Then do one thing. Rather than declare variable like this, do like this. आप ऊपर जैसा है उस करने के बजाय आप ऐसा करें, ये करते हैं, इस तरीके से डिक्लेयर करें. इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा? सी, जब आप इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तब क्या होगा? जो भी आपकी मेमोरी एलोकेशन है, जो भी आपको मेमोरी अलॉटमेंट है मेमोरी के अंदर, दैट विल बी लाइक दिस. इस तरीके से होगी 1 for 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. मीन्स इस तरीके से आपके वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट मिलेगी, यानी ऑल फ्रेंड नाउ टुगेदर. अब जो भी मैसेज आपको कन्वे करना है, यू कैन कन्वे द मैसेज 1 to 2. आप एक से दूसरे भी मैसेज पास कर सकते हो इजीली, क्योंकि ऑल आप एक साथ हो. आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, लास्ट से आप स्टार्टिंग में चल सकते हो, या स्टार्टिंग से आप पहले चल सकते हो. ठीक है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. फैच कर सकते हो, किसी को भी यहां से बुला सकते हो, यहां से बुला सकते हो. तो मेनी ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म, और यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक if you want to perform some operation between the element of this arrangement, you can perform because you have a collected data. तो कुछ भी आप कर सकते हो. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एरे. तो मेमोरी का ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाया एरे. दिस इज द बेनिफिट ऑफ एरे. व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द एरे, देन देयर आर सम सर्टेन एडवांटेजेस, जैसा मैंने अभी बताया. तो डेटा मैनेजमेंट इज वेरी इजी. नाउ डेटा इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चराइज्ड, इसीलिए वी आर गोइंग टू टेक एरे फॉर द डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर को जब भी हमें करना होता है, वी नीड टू टेक एरे. एरे, एस यू नो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, इट मीन्स दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन
who take the similar type of value. So array is a combination of the allocation of the memory blocks in which you can store similar type of data. अगर integer का है तो integer जैसे रहेंगे, और फ्लोट है तो फ्लोट जैसे रहेंगे, करेक्टर है करेक्टर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। आई होप, क्योंकि अरे आपने पहले का भी पढ़ा हुआ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे आपका जो मेमोरी है ये रिकॉल हुई होगी। सो ना आई होप कि एरे का कॉन्सेप्ट, कि एरे की डेफिनेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन डिक्लेयर द So next is array declaration and initialization in PHP. How you can declare and initialize array in PHP? So it is very easy. As you all know that whenever we are going to take the variable, we used to mark the dollar sign कि जो भी हमें वेरिएबल लेना है, फर्स्ट वी यूज टू डू लाइक दिस, ए इस तरीके से। तो सिमिलर इफ यू आर वांट टू टेक द एरे, सपोज एरे लाइक मेरे को एक एरे बनाना है जिसका नाम मैंने रखा मार्क्स, दिस इज द नेम ऑफ एरे। हियर यू हैव टू कॉल अ फंक्शन एरे। देखो, इन दिस देयर इज नो, in other language like if we talk about C and Java, you have to supply the type of the array, ठीक है, आपको टाइप सप्लाई करना है उस इस टाइप के बिहाफ पे। जैसे यहाँ पे आपने इंट लिखा है ना, इसके बिहाफ पे यू हैव टू सप्लाई द वैल्यू। सपोज अगर इंट है देन यू कैन सप्लाई द न्यूमेरिक वैल्यू एज अ साइज। उसके बाद आप इसमें वैल्यू असाइन करते हो, साइज आपने कर दिया, उसके बाद आप इसकी वैल्यू असाइन करते हो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरीके से। अगर कैरेक्टर है तो आप एक कैरेक्टर डाल देते हो, इस तरीके से वैल्यू आप डालते हो। बट पीएचपी में और पाइथन में ये थोड़ा सा डिफर है, मींस वी नो नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ दिस एरे, वी जस्ट हैव टू इंसर्ट द वैल्यू। सो एज पर द टाइप ऑफ द वैल्यू द एरे विल एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इट्स साइज। जैसे जो भी आपने एरे में वैल्यू दी है लाइक दिस, जैसे आप ये न्यूमेरिक वैल्यू देना चाह रहे हो, ये किसकी वैल्यू है, न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू है, बिकॉज द वैल्यूज आर न्यूमेरिक, सो दैट एरे विल गोइंग टू ट्रीट बाय पीएचपी एज अ इंटीजर एरे। और ठीक सपोज इसी तरीके से अगर कोई आपका एरे है, एरे, लेकिन यहां पे आपने वैल्यू डाल दिया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, बरेली। Now this array will going to be treated as a string array। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई एरे यहां पे लिया है लाइक दिस एरे, सब देखो एक ही जैसे डिक्लेयर हो रहा है, लाइक ए बी सी। Now this array will going to be treated as a character array। So the type of array is basically depends upon the value that you have provide inside the array। तो जो भी आपने वैल्यू दी हुई है एरे को, उसके बेस पे इसका टाइप डिपेंड होता है, एंड नो नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ दिस एरे। सो इन दिस प्रोग्राम, अभी जो मैं हम आगे बढ़ेंगे, मैं ये वाला एरे सबसे पहले लेके चलूंगा, न्यूमेरिक एरे। ठीक है, आप कोई भी एरे ले सकते हो। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू क्रिएट द प्रोग्राम फॉर दिस। ये क्लियर हो गया ना आपको? और इतना और बता दूं, whenever you are going to print the array, you have, there are lot of types by which you can print the array. Either you can print the array through the loop, or you can print the array through the print r method। print r, the array will going to be print with its index।
अगर आपने ये लिख दिया, ऊपर डिक्लेयर हो गया, इसे इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट, और इसे अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट मानोगे, तो ये एरे आपका डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया, और यहाँ पे आपने इसे प्रिंट भी कर दिया। तो एरे इज गोइंग टू प्रिंट। कैसे? लेट्स सी। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक अनदर प्रोग्राम, ब्लैंक php create. So first of all I would like to save this program. मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूं। your class today is 6 March and your class is, what's your class? 2B, I think. It's okay, it's fine na? Yes, sir. Save it. Yes, sir. थोड़ा डिजाइनिंग मेरे को करनी है बिकॉज ऑफ बेटर फील। सो मैंने टेबल ले ली, ड्रीम व्यूअर के थ्रू मैं यहाँ पे डिजाइन मैंने किया, टेबल ले ली, इस टेबल को थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया। हियर आई वांट टू पुट द पिक्चर, तो यहाँ इस सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया। पिक्चर मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है प्रोग्राम्स में, यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को, इस पिक्चर को कॉपी कर लिया, और या आप टूल से लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। Here I'm going to write the heading of this program. The heading of this program is indexed array. तो सबसे पहले हम कौन सा array यूज कर रहे हैं? Indexed array in PHP. सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन दी हेडर, ये आपकी हेडिंग बनेगी। अभी सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। array initialization ऐसे कर लेता है, यानी initialization और declaration initialization and printing। इसे किया, हेडर पे क्लिक किया, यहाँ मेरे को कोड लिखना है, मैंने जगह चूज की। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन द कोड विंडो आ गई। नाउ यू हैव टू क्लिक लाइक क्रिएट द पीएचपी टैग लाइक दिस। क्लोजिंग टैग आपने बना लिया। अब यहाँ पे आपको एक एरे बनाना है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फॉर द क्रिएशन ऑफ एरे यू नीड a $sign like marks। now array, यहाँ पे you can take the elements। I'm going to take this 5 marks of the 5 subject, means 5 value I'm going to take here, 80, then 85, then 90. This is the array that I have created, 1 2 3 4 5 with 5 elements. Now I can print this array. So first of all I would like to print the array through the loop. For the loop you can create the loop like for I is equals to, you can start with a 0 or you can start with 1. $I is less than 5 because you have started with 0, तो ये less than 5 रहेगा, means 4 तक रहेगा। अगर आप loop 1 से start करोगे तो that should be less than or equivalent to 5 होगा। Now $I plus plus, here you can print the array, then either you can use echo or you can use print method for printing the array. So here you can write your marks is equal dot, you want to print the value of the array, marks bracket index। so पहले 0 इंडेक्स का प्रिंट होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स का, फिर सेकंड इंडेक्स का, इसलिए आप आई पास करा दो। डॉट नई लाइन में आए तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक द BR। सी this program is I'm going to start execute। ठीक, so I'm going to start this program। here you can create the localhost under 20mc2b folder। your program is 6 March 2b.php। see your marks is 70 60 80 85 90, so you can print the array like this। ठीक है जी। अभी suppose if you don't want to use the loop,
Then how you can print the array? See, going to inside the code again. यहाँ पे you can take, I'm going to write the mass, first of all give the message that array printing through the function or method, whatever function. Here I am going to use br for the breaking line, जैसे ये नई लाइन में आएगा. हाँ, अभी कैसे करोगे आप एरे को प्रिंट? सिंपल, here you can take print r, this is the function, so you can take the name of the array with dollar sign like this, only name with the dollar sign. ये क्लियर हुआ ना? अभी कैसे करोगे यहाँ पे? See, now see, array printing through the function. Now here you can see with indexing. So अगर आप print r के थ्रू जाते हो तो then you can see your array is going to be display with its indexing number. जैसे 0 इंडेक्स पे 70 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 60 मार्क्स है, 2 इंडेक्स पे 80 है, 3 पे 85 है एंड 4 पे 90 है. So with this, by this code you can print your array. Now you have a two way. Either you can print your array through the loop or you can print your array through the function. Is it clear now? I think this should be very clear to you now.